ಸರ್, ನನ್ನ ಉದಯಗಿರಿ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಒಂದು JDS ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ JDS ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಲೆಟರ್ ಬರ್ದು ಆ ಥರ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಟೀಮು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲಿಯಾಸ್ ಬಾಬು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, 180% ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಇವತ್ತು JDS ರ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದು ಯಾವುದೂ ನನ್ನ ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬರ್ದಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಬು ಅವರೇ ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಬಾಬು ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆ ಒಳಗಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸಿಟಿ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಪೋಸ್ಟ್ ತಂದಿದ್ರು ಅದಂತೂ ನಮಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಗರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳದಂತೆ ಯಾರಿಗೋ ಹೋದಾಗ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಲ್ಲ. ನಾವೇನಿದ್ರು ಬಾಬಣ್ಣವ್ರು ಏನಿದಾರೋ ಬಾಬಣ್ಣವ್ರನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೊದಲಿದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ಅವರವರೇ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ, ಯಾರಿಗೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಲೆಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, CM ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. CM ಇಬ್ರಾಹಿಂನವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಲೆಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ಮುಂದೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಇವರು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಾಬಣ್ಣವರೇ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇವರು ಬಾಬಣ್ಣವರೇ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ. ओके शाहिद भाई, CM इब्राहिम साहब का नाम सामने आ रहा है, क्या उनको मालूमात नहीं थी? क्या है सर? क्योंकि सिटी प्रेसिडेंट ही जब मानने को तैयार नहीं है, तो आपकी नज़र में क्या है सर ये कल जो हुआ? नहीं, जो अब JDS का एक अच्छा काम चल रहा है, तो बहुत सारे आदमियाँ जुड़ रही JDS को. अब वो लेटर दिन से हमारे सिटी प्रेसिडेंट उसका जवाब देखो नहीं. वो कहते आदमी आते, हमें किसी भी JDS को को बोलने नहीं होता. तो ये क्या हो को है, मुझे भी आज बोलने में मालूम हुआ. इंशाअल्लाह अब सिटी प्रेसिडेंट सिटी के अंदर जो भी होता है वो सिटी के आदमी हमें बैठ को बात कर को करना पड़ता. सो इलेक्शन हुआ तक उन्होंने को सिटी प्रेसिडेंट बोल को ही उन्होंने क्या बात करी, वो बात को हमें भी रहना पड़ता. क्योंकि तो स्टेट प्रेसिडेंट CM इब्राहिम साहब स्टेट में ही, CM इब्राहिम साहब ने देखो ही सो लेटर है. ये लेटर दिन सो हमारे शमशुल हक माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट अलादा ही, तो उन्होंने लेटर देखो ही. अब यहाँ हमें लोकल में जो है ये क्या भी बड़ा मसला नहीं है, वो बुला को बैठ को बात कर को वो पार्टी को उन्होंने भी आगो ही. पार्टी को कौन अभी कौन आती, JDS को कौन आते, उनको सब भी हमें साथ में लेको, छोटा मोटा रहता वो क्या भी बड़ा इशू नहीं. अब सिटी प्रेसिडेंट बोल को ही बाबू भाई रतिंग को उन्होंने क्या बोलते हैं, सिटी के अंदर ये प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं, हमें उसके ऊपर चलना पड़ता. आइंदा दिन में ये सब बराबर होता है. क्या भी प्रॉब्लम? ये छोटा इशू को, लेकिन ये छोटा इशू नहीं सर, क्योंकि उदयगिरी सर्कल से उनके ऑफिस तक एक बड़ी रैली के साथ बहुत सारे JDS के लीडर्स भी जुड़ गए. बहुत अच्छी बात ना, JDS को आदमी आ रही तो हमें नको को बोलना नहीं होता ना. कंफ्यूजन क्या भी नहीं, JDS वाले उन्होंने भी, हमें भी JDS वाले अच्छे. ऐसा पार्टी हमें हर पार्टी में प्रॉब्लम नहीं चाहिए. उससे क्या भी 2 पार्टियां तो नहीं ना, किचक पार्टी ना, उन्होंने भी JDS, यहाँ हिंसो वाले भी JDS. अच्छा काम हो रहा है, डबल में काम अच्छा हो रहा है. हमें NR में जीतना, इसके वास्ते काम ले रही. अब जो नॉलेज में नहीं आता वहाँ कहीं की उन्होंने जाको ले कहीं, तो सिटी प्रेसिडेंट है इन्हों बैठ को उसका मसले का हल कर लेती. बड़ा प्रॉब्लम क्या भी नहीं, लेकिन NR में काम अच्छा हो रहा है. सिटी में आप लोग एक हैं क्या, इत्तेहाद है? बहुत पूरी मैसूर सिटी के अंदर नहीं, स्टेट में जमे एक हैं. JDS वाले पूरे एक हैं. किसी तभी JDS से पार्टी टिकट देंगे, सब मिलकर हमें काम करते हैं. सबको पूछने का हक है, सबको. ये भी ऐसा प्रेसिडेंट का भी सबको पूछने का हक है.
किसे देती उसे हमें काम करना। तो एक एनआर क्षेत्र में रैली निकाल को एक हलचल तो चल रही है। आज बाबू भाई भी आदमी हमको बुला को काम कर रही है। ये वार्ड वाइज काम होता है। उन्होंने सब भी एक ही चेक पार्टी के बाद एक ही चेक सिंबल है। हमें सभी एक काम आलादा आलादा हर पार्टी में चलते रहती, वो चलता रहता क्या भी नहीं, लेकिन पार्टी का काम पूरे मिल को हमें करती। ऑफिशियली लिस्ट कब अनाउंस करती है सर? ऑफिशियली लिस्ट सीएम इब्राहिम साहब कुमार स्वामी बैठ को बात कर को सीएम इब्राहिम साहब बोल को ही ना कांग्रेस की पट्टी रिलीज होने के बाद कर को बोल को ही उस वैसा अच्छे उस तरीके से काम होता अच्छा, एक आखिरी सवाल, 26 तारीख को जो कुमार स्वामी का प्रोग्राम है यहाँ पे, अभी जब कांग्रेस में थे सत्या में जब एक रैली निकाले थे, बहुत ज्यादा लोग जमे थे, क्या ये मरतबा इस मरतबा आपकी कोशिश रहेगी? नहीं, इस मरतबा अभी जरा जोर से करेंगे। की कर को बोले तो अदम्यांग के अंदर आज जो पंचरत्ना का जो प्रोग्राम देखो है कुमार स्वामी साहब, ये अदम्यांग को छूने का प्रोग्राम, ये गारंटी वारंटी का प्रोग्राम न है, ये पूरे हर जात के आदमी को मिलने के प्रोग्राम है। आज एजुकेशन के बारे में हो, अब वो पॉम्पलेट वो भी आ रही, इंशाल्लाह घर घर पहुंचाने की हमें कोशिश करते। तो अवामी सामने बढ़को आ रही है। हमारे मुसलमान को जरा हमें बोलना सो ऐसा नहीं ऐसा घर को बोल को, इंशाल्लाह वो बोलने की कोशिश चल रही है। कहाँ की गुमराह कर नहीं सकते इस बार, ये जनरेशन को हमें किसी भी हालत से गुमराह नहीं कर सकते। पहले बोलने का गया है वो ऐसा अगर कोई एक आदमी बोले तो 10 आदमी वो बोल देते हैं। आज 10 आदमी बोले तो एक आदमी सुनना तो बहुत मुश्किल है। पहले एक आदमी बोला 10 आदमी सुनते, आज 10 आदमी एक आदमी को बोला तो सुस्त आदमी। तो जो जो प्रोग्राम आप देखो ही घरान देने का प्रोग्राम, उसके बाद मेडिकल का ऑपरेशन 50 लाख हुआ तो भी फ्री में करने का। अब जैसा कि हमारे साथी एक बोले, जो प्राइवेट स्कूल से ही इसी तरह से गवर्नमेंट स्कूल को कुमार स्वामी देना, एजुकेशन को कितना प्रॉब्लम है सब मालूम है ना तुमना। और इसके पहले जो मुसलमान के बारे में आवाज नहीं उठाए, चंद चीज आई उन आगे बढ़े। आज कई को मंड्या के अंदर नरेंद्र मोदी आ रही सो, जेडीएस कहाँ स्ट्रांग है, आज बीजेपी वाले वहां पहुंच रही। वजह क्या? जिस जगह जेडीएस स्ट्रांग है, मंड्या में स्ट्रांग है, कई को मोदी मंड्या को आ रही। मंड्या को आने का वजह कहाँ की एक जगह इंटरनल रिपोर्ट है, जेडीएस आज गवर्नमेंट बना चाहिए को बोल को, इस वजह से उन्होंने मंड्या के अंदर कहाँ स्ट्रांग जेडीएस है वहां उन्होंने आ रही है। पहले जेडीएस की बात नहीं लेते थे, आज जेडीएस कर्नाटक में आज है, आवाम खुद आगे बढ़ को आ रही है। इंशाअल्लाह जो प्रोग्राम सीएम इब्राहिम साहब और कुमार स्वामी साहब देखो ही, इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत है तो वो आदमियों को पहुंचाने की कोशिश करें। कल जो उदयगिरी में हुआ, चलो बड़ा सा तमाम क्लियर बता दिए हैं कि प्रोटोकॉल के तहत ऐसा कुछ भी नहीं है, और जब तक उनको इंटीमेशन नहीं मिलता ये बेबुनियाद है। तो आप क्या बोलते हैं उसका? देखो, मैं एक पार्टी वर्कर, एक प्रेसिडेंट से ज्यादा जो है मैं पार्टी वर्कर। मेरे बड़े जो बोलते मैं करता हूँ। मेरे बड़े जो हैं आज मीटिंग करो बोले, हमारे चल्लेगौड़ा साहब प्रेसिडेंट, हमारे जीडी देवगौड़ा साहब, हमारे अब्दुल्ला भाई, हमारे सारा महेशना, मंजेगौडर, उन्होंने पूरे जो है आज मीटिंग करो बोले। हमारे शाहिद भी, मेरी जिम्मेदारी क्या आज मीटिंग करना। मेरे बड़े जो नक्को करो बोले तो चीज़ मैं नहीं करता, उनकी बात पर मैं हूँ, इंशाल्लाह उनकी बात पर रहता हूँ। मुझे सब आप ही झाड़ोगे तो मैं झाड़ता हूँ। वैसा मैं पार्टी का वर्कर होने के नाते जो है मुझे सब पार्टी के आप ही झाड़ो करो, मैं वो जिम्मेदारी में निभाता हूँ इंशाल्लाह। मुझे प्रेसिडेंट इसको जो बोलती इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं तहत मैं काम कर लग जाता हूँ। मेरे दिमाग में साथ में लोगों मैं काम करना चाहता हूँ। आने वाले इंतखाबात में आप ये बोले चल्लेगौड़ा कि आपके सदारत में ही काम होगा, तो क्या पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या कर रहे हैं? नहीं, हमारे प्रोग्राम अलग हैं क्योंकि तो हमें 35 साल से पार्टी को सियासत में ही वो चंद चीज़ें हमारे जहन में ही क्या तरीके से करना और जरा चीज़ें हमें मीडिया में नहीं बोल सकते। वैसा उसकी प्लानिंग्स अलग ही हमारे बड़े के सामने बैठ को हमें बात करती हैं। पार्टी को जो मजबूताई होना, हमारे वर्कर्स को मजबूताई जो देना, हमें जो काम कर को ही हमारे सामने आने वाले जो काम आई उसके तहत हमें समझा को जो है पार्टी को क्या तरीके मजबूताई करना, इंशाल्लाह काम करना। 26 तारीख के बारे में क्या कहेंगे? 26 तारीख के ताल्लुक से जो है हमें बोलकर ही सब भी जुड़ो,
पंचरत्न कार्यक्रम जो है कुमार स्वामी को जो है एक ताकत बन सभी मिलकर आओ। कहाँ पे है, कितना बच्चा अभी पता नहीं सर। वो प्रोग्राम कहाँ पे है? कहाँ से टेमिंग। स्टार्ट होती है रैली? वो रामनगर से अगर ऊपर इंशाल्लाह एक दो चार दिन में क्लियरेंस उसको होता है, बताएंगे हमें। बताते इंशाल्लाह, प्रेस मीट करते इंशाल्लाह। ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಲೆಟರ್ ತಂದ್ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವ್ರು ಲೆಟರ್ ತಂದ್ಕೊಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನೂ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಬಾಬಣ್ಣವರೇ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ ಅವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲೇ, ಅವರ ಅಧಿಕಾರದ ಒಳಗಡೆ, ಅವರ ಅಧಿಕಾರದ ಇದುವರೆಗಡೆ ಈ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಅವರ ಮುಖಂಡತ್ವದಲ್ಲೇ ನಾವು ಚುನಾವಣೆನ ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲೇ ಚುನಾವಣೆನ ಎದುರಿಸಿ ಅವ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಸಾರಿ ಏನಿದೆಯೋ ಇವತ್ತು ಕುಮಾರನ ಇದೊಂದು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತ ಕೊಟ್ಟದ್ದಾಗ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಹೊಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಜೈ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಸೀರಿಯಸ್ ವಿಧವೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಈಗ ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೈ ಚಾಚಬಾರ್ದು. ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಅಭಿಮಾನಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಬೆಳೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡವ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೂ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗ ಏನೋ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಎಜುಕೇಶನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಡೆಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ತರ ಓದ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಮಾರನಿಗೆ ಕೈ ಬಲ ಮಾಡೋದ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಲ ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आप सबके जेडीएस के लीडर और एक्स चेयरमैन अब्दुल अजीज अब्दुल्ला भी और हमारे चलवेगौड़ा साहब की लीडरशिप में जो हमारे सिटी के प्रेसिडेंट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज एनआर क्षेत्र है ना प्यासी है, पूरा मैसूर प्यासा है, क्योंकि हमारे और आपके लीडर कुमारना और हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री देवेगौड़ा साहब अपा जी जो हमारे लिए मुसलमानों के लिए जो किए हैं ये कभी भूलना नहीं चाहिए। आप सब लोगों को पता है जो 4% जो रिजर्वेशन मिला मुसलमानों को, ये जो बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान। कांग्रेस के इतने बड़े बड़े लीडर्स जिंदगी भर उन्हें 70 साल से बंद करने का है, लेकिन मुसलमानों के लिए उन्होंने कोई कुछ काम नहीं किया। लेकिन माइनॉरिटीज को एक रिजर्वेशन जब मिला है अल्हम्दुलिल्लाह 4% रिजर्वेशन, आज बहुत बड़े बड़े मुकामात के मुसलमान बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े पोजीशंस में हैं। आज का यहाँ जमा होना हमारे सिटी प्रेसिडेंट चलवेगौड़ा साहब, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट रामण्णा, हमारे बड़े क्लास प्रेसिडेंट रिजवान भाई, हमारे स्टेट सेक्रेटरी हमारे दोस्त शाहिद भाई, हमारे रफीक भाई, मुश्ताक भाई, कन्नार भाई, नासिर भाई, मुजस्सिद भाई और जो लेडीज जो भी यहाँ पर आते हैं और हमारे पार्टी के चाहने वाले, आज का यहाँ जमा होना जो है ये बहुत जरूरी है। इसको 6 तारीख इसी महीने
जो कुमारस्वामी जो ही 6 तारीख को जो पंचायत रहे कार्यक्रम जो डाल कर और उसकी बिना पर जो है हमें बात करना और समझाना। कुमारना जो है पूरे स्टेट के अंदर एक मुहिम चला कर पंचरत्ना यात्रा पेंशन जिसे है, जिसे कम पेंशन आ रही है उसकी जांच करना, जिसे घर नहीं है उसे घर करना, जिसे अच्छा एजुकेशन नहीं है उसे वो बच्चा एजुकेशन करना और बहुत सारे स्कीम्स डालकर। और किसके वास्ते तो बोले तो ये कौम के वास्ते, सबके वास्ते, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके वास्ते। वो सब चीजें होना तो हमारी जिम्मेदारी क्या, हमें क्या करना, हमारी जिम्मेदारी क्या। अब हमारे कुमारना को तबियत अच्छी नहीं, हमारे एचडी देवगौड़ा साहब की उम्र कितनी हो है, इसके बावजूद भी उन्होंने कर्नाटका के मुस्तकबिल के वास्ते, कर्नाटका के अवाम के मुस्तकबिल के वास्ते, उनकी फलाह बहबूदी के वास्ते उनकी जान माल की कुर्बानी देनी। तो हमारी जिम्मेदारी क्या बचती है बोलो तो उनका भरपूर साथ देना, उनकी ताकत बनना। आज क्या होगा है तो इलेक्शन की गर्मी शुरू होगा है, वो चंद्रमा बोलते थे वो मेंढू का झुंगुरा बाहर निकल गई उनको। हमें वो चीज को जहीन देना नहीं, ध्यान देना नहीं। हमारा जहीन और ध्यान डालना तो 5 साल जो आदमी हमारे साथ में रहता है, 5 साल हमारे दुख दर्द में साथ आको रहता है, हमें उसके पीछे ध्यान देना। एक लीडर को बनने के बाद क्या होता है तो ये लीडर हमारे साथ में है क्या, कल से है क्या, नहीं बरसात से है क्या हमारे साथ में, नहीं आज आपको सभा चले जाता कहने, इस चीज का ख्याल रखना। हमारी जिम्मेदारी क्या है, यहाँ प्रोग्राम है 20-25 तारीख को, 20-25 तारीख को प्रोग्राम में जो है 6 तारीख के प्रोग्राम में जो है वहां पर हमें 2-3 घंटे का वक्त देना। वो 2-3 घंटे का जो वक्त है ना 5 साल के वास्ते आसानी साबित होता है। हमें जरा अलसाई कर लगो, हमें कहीं भी जाना, इनको सियासत बनाना, इनके मफाद के वास्ते करती सो, इलेक्शन आगा सब भी अब करती सो ऐसा चीज बुलाई सो हमना बुलाइश जो पैसा का डिमांड रखना, हमने इतने का साझे ना की सहूलत नहीं आती, ये सब छोड़ देना। जिन्हें हमारे घरों के वास्ते, हमारे स्टेट के वास्ते, हमारी कौम के वास्ते जिन्हें मुस्तकबिल का काम कर रहा है, हमें उसके साथ में रहना हमारी जिम्मेदारी। अगर हमें कहा कि इस बार हमें जरा गलती कर लिए, नहीं कहा कि जरा अलसीपना कर लिए, तो क्या होता अगर तो 5 साल जो है हमारे ऊपर बहुत बड़े आफत आने वाले हैं। तो बहुत सारे मसले थे, हिजाब का मसला कोई भी बात करे नहीं, गोकुशी का मसला कोई भी बात करे नहीं, जो छोटे मोटे व्यापारियां जो सरिया के अंदर व्यापारियां कर लोग थे कोई भी बात करे नहीं। उनकी बात का कांग्रेस वाले क्या करेंगे तो कहते बात करने दे तो उनको बिठा दे, मुसलमानों को लीडरा जो नहीं मुसलमानों को बिठा दे। तो फिर हिजाब का मसला शुरू हुआ है। हमारे कौम के बच्चे जो नहीं हिजाब पहन कर स्कूलों को गए सरकारी, कॉलेजों को गए सरकारी, कौन सा भी एक कांग्रेस का लीडर उसको बात करने वाला नहीं है। बहुत सारे हैं हमारे लीडर, कौन को आज हिजाब का मसला ना, ये कौम का मसला ना, हमारे नाम से हम ना टिकट दे कोई सो, अगर दूसरा नाम मिलता था तुम टिकट देते थे, नहीं देते थे। नाम से जो है रिजर्वेशन के तलब से तुम टिकट दे कोई सो, लेकिन आज कोई भी बात करने वाला नहीं है। इस वास्ते आज हम ना एक आवाज बन को कुमारना कर को नहीं, अब उनकी ताकत बनना हमारी जिम्मेदारी। जो स्टेट के अंदर जो है फिर तो क्या कर रही है तो थक जा रही है।
लेकिन उसके बावजूद भी जो है आखिरी पैमाना को जो है 20-25 तारीख को जो है प्रोग्राम तो तुम्हें लोग हमने ताकत बने तो हमें तुम्हारी ताकत नहीं, वो इंशाल्लाह मालूम हमें मालूमात कराते हैं इंशाल्लाह और साथ साथ हमें बसाने का इंतजाम करते हैं ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೊಡುಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಜನತಾದಳದ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಈ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶಾಹಿದ್ ಅವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರಣೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ.